Hello learners, welcome to others classes, and today we are going to discuss class 8 English MCB chapter 5th, The Worth of a Skill, written by Manoj T. Thomas. All question answer with all reference question. We will discuss each and every question one by one. So you can see here, this is your chapter 5th, The Worth of a Skill. And what is the theme of this particular chapter? The theme is community. Now, time to answer. Choose the correct answer. So you have to choose. Okay. Now, which of these lines tell you that Lawrence was fond swimming? So here is 4 lines. You have to read carefully and then find out the particular and accurate answer. कि इन चारों में से कौन सा लाइन है जो आपको बताता है कि लॉरेंस को स्विमिंग का बड़ा ही शौक था. First one is, if I could not swim to save the life of a young boy, my reputation as the fastest 100-meter swimmer in the district would be meaningless. ठीक है. Second one है, but he loved the sea too much. It was not possible for him to come out of the sea very easily. And the third one, he had rare gift of swimming fast as well as swimming over long distances. And the fourth one, Lawrence allowed the babes to lift him up and carry him towards the shore. इन फोर्थ में कौन कौन सा राइट आंसर है आपको इनको करना है. आई थिंक कि देखिए फर्स्ट वाला इसका एकदम सही है. शौक का पता चलता है, ठीक है ना, शौक का कि उसको भाई उसका फॉन्ड है स्विमिंग, उसका जुनून है, उसका पैशन है. तो ये जो 2 लाइनें हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 लाइनें करेक्ट है. इट मीन्स योर ऑप्शन विल बी 1 एंड 2. ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, why did Lawrence consider the chance to represent his district in swimming to be the biggest break in his life? लॉरेंस ऐसा क्यों सोचते थे कि ये जो स्विमिंग कंपटीशन है डिस्ट्रिक्ट का, ये मेरे लाइफ का एक बिगेस्ट ब्रेक हो सकता है. अगेन here is 4 lines, you have to choose correct one, because that would be way out from his present state poverty. The second one, because of that would mean he would never have to go to a school ever. And the third one, because then he could go swimming over long distances. And the fourth, because then he could buy a watch and a pair of shoes for himself. तो नहीं, वो बिगेस्ट ब्रेक शूज़ और सॉक्स खरीदने के लिए नहीं चाहता था, स्विमिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इसके लिए भी नहीं चाहता था, और वो कभी स्कूल नहीं गया है तो इसके लिए भी नहीं चाहता था. वो किस लिए चाहता था? बिकॉज दैट वुड बी अ वे आउट फ्रॉम हिज प्रिवेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि वो अपनी आज की गरीबी को दूर कर सकता है. जैसा कि चैप्टर में उन्होंने बोला था कि मैं बाय द हेल्प ऑफ स्विमिंग आई विन द स्कॉलरशिप एंड नाउ देन आई विल गो टू अ स्कूल एंड इट विल बी अ चांस फॉर फर्दर इन जॉब. तो सब चीज़ों के लिए उनको चाहिए था ये इसमें पार्टिसिपेट करना और जीतना. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, विच प्रोवर्ब कैन सम अप द थीम ऑफ द स्टोरी? कि यहाँ कौन सा प्रोवर्ब है जो इस स्टोरी के थीम को सम अप करता है? सो योर आंसर विल बी थर्ड वन, योर लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाई दी वॉट यू हैव टू डन. आपकी ज़िंदगी इस बात से तय नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हैं, बट बाई वॉट यू हैव डन फॉर अदर्स. इस बात से होती है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं ना. अपने लिए तो सभी जीता है, जो दूसरे के लिए जिए वो जिंदगी है. नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस, यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, point out
instances from the story that tell us that Lawrence belonged to a poor family. तो कुछ पॉइंट आउट यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है स्टोरी से, जो आपको ये बताए जो उसके पुअरनेस से बिलोंग करता है, उसकी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि लॉरेंस गरीब था, तो उसकी गरीबी को कैसे दर्शाया जा रहा है। सो योर आंसर विल बी point out in instances from the story that tell us that Lawrence belonged to a poor family. So your answer will be Lawrence belongs to a poor family as he never went to a school. पहला कि वो कभी स्कूल नहीं गया था, 13 साल का हो गया था, now he was 13 years old, and neither does he have a watch to see the time. ना ही उसके वो ना कभी स्कूल गया है, ना उसके पास कोई घड़ी है टाइम देखने के लिए. He doesn't even have a father, जैसा कि we know that he has no father, उनके father नहीं हैं. He only has a mother, and he wants to chance to participate in a swimming run by the government so that he can earn a scholarship, study and later get a government job. तो आपने देखा किस तरह से उसकी गरीबी को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि ना उनके पास कोई घड़ी है, ना ही वो स्कूल जा रहा है, ना उसके पास स्टडी है, इवन उनका फादर भी नहीं है, सिर्फ इकलौती मम्मी है उनकी. इसीलिए वो चाहता है एक चांस कि वो स्विमिंग में अपना करियर बनाए, स्कॉलरशिप जीते और अपनी इन फ्यूचर ही गेट अ गवर्नमेंट जॉब. ये और वो खेल के कोटा से या स्विमिंग के कोटा से जा कर के वो क्या कर लेगा, एक जॉब भी अर्न करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कुड विनिंग द 100-meter स्विमिंग कंपटीशन गिव लॉरेंस अ बेटर लाइफ. कि कैसे वो 100 मीटर का स्विमिंग कंपटीशन लॉरेंस को एक नया लाइफ देता है. कैसे देगा? योर आंसर विल बी विनिंग द 100-meter स्विमिंग कंपटीशन could open the opportunity for Lawrence such as scholarship, a sponsorship or recognition that could lead to the better educational and career prospects. So it might also provide financial rewards or grants that could help alleviate his family's financial burdens. तो इसके ज़रिए वो सब कुछ कर सकता है. 100 मीटर रेस को जीत जाएगा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा स्कॉलरशिप का, उसको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा और उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी, उसका एजुकेशनल करियर भी बेटर हो जाएगा और आगे की उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बर्डन है, वो भी दूर हो जाएगा. सो it was your proper answer. Okay. Now question number 3. Why was the woman at the beach waving her hands frantically? वो महिला एकदम से फ्रेंटिकली टाइप से एकदम पागल की तरह अपने हाथों को हिला हिला कर क्या बोल रही थी वो. ठीक है. एज वी नो दैट किसी की भी मम्मी उस कंडीशन में एज ए इंटेंस हो जाएंगी, पागल हो जाएंगी जिनका बेटा शी में डूब रहा हो. ठीक है. तो वो क्या बता रही थी? द वुमन वॉज वेविंग हर हैंड्स फ्रेंटिकली बिकॉज हर सन वॉज लॉस्ट. हर सन वॉज लॉस्ट. उसका जो बच्चा था वो खो गया था और वो पानी में कहीं ना कहीं डूब रहा था. शी वॉज लाइकली इन अ स्टेट ऑफ पैनिक. उनकी स्थिति कैसी थी? एकदम पैनिक थी, डरी हुई, सहमी हुई थी, डिस्ट्रेस में थी. सीकिंग हेल्प टू फाइंड हर मिसिंग चाइल्ड. और वो चाहती थी कि कोई आए और उसके बच्चे को बचाए. ठीक है. सो इट इज़ योर आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन. What disappointing news awaited Lawrence at the stadium? कौन सी मनहूस खबर थी स्टेडियम में जो लॉरेंस का वेट कर रही थी, है ना. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब वो लेट पहुंचता है तो वो स्विमिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि दिस ईयर्स रेस जस्ट गोट ओवर एंड देन यू आर 1 year टू अर्ली सर, है ना. उसको रूडली इस तरह बोला था कि आप तो 1 साल पहले आ गए सर, कंपटीशन तो अभी भी ख़त्म हुआ है. सो योर आंसर विल बी व्हेन लॉरेंस रीचेस द स्टेडियम द ऑफिसर फर्स्ट ट्राइज टू टॉन्ट हिम. ताना मारने का, है ना. पहले उन्होंने टॉन्ट किया एंड देन सेज
यू आर सच अ केयरलेस पर्सन, कि तुम कितना केयरलेस हो बताओ. इफ़ यू कैन नॉट if you cannot maintain the simple discipline of the coming on time for the competition, so how we can expect you to be a disciplined representative. कि जब तुम अपने कंपटीशन के लिए टाइम पे नहीं आ सकते हो तो हम लोग तुम पर कैसे फेथ करें कि तुम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व हो सकते हो. वी नीड सच अ प्लेयर इन डिस्ट्रिक्ट हु आर डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट. हमें एक ऐसा ईमानदार आदमी चाहिए जो एकदम से डेडिकेटेड हो और ऑनेस्ट हो, आपकी तरह केयरलेस नहीं हो. तो ये मनोज खबर थी जो वहाँ पर उसका वेट कर रही थी कि ख़त्म हो गया है, स्विमिंग कंपटीशन ख़त्म हो गया है, और उन्होंने इतना सुना भी दिया इनको. नाउ 5th नंबर क्वेश्चन एंड द लास्ट वन. व्हाट वाज लॉरेंस रिवॉर्डेड फॉर हिज गुड डीड. उनके अच्छे कामों के लिए, कर्मों के लिए लॉरेंस को क्या रिवार्ड मिलता है, कैसे रिवार्ड मिलता है. सो योर आंसर इज लॉरेंस वॉज अवार्डेड विद अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने उनको ब्रेवरी का प्राइज़ दिया. ही वॉज गिवन अ स्कॉलरशिप टू हेल्प हिम इम्प्रूव हिज स्विमिंग स्किल्स. और उनको एक चांस भी मिला और तो और उसको स्कॉलरशिप भी मिला कि भाई अपनी स्विमिंग को इम्प्रूव करो. इट इज़ वेरी गुड एंड स्पेसियस स्किल्स. तो इसके लिए उनको रिवार्ड और प्राइज़ मिला. नाउ कम टू द रेफरेंस क्वेश्चन एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है. सो हियर इज गिवन अ लाइन. फॉर अ मोमेंट लॉरेंस बैलेंस्ड हिज ऑप्शंस. यू कैन सी इन योर बुक. आप अपने किताब में वो लाइनें देखिए. ठीक है. तो वो लाइनें थी कि फॉर अ मोमेंट लॉरेंस बैलेंस्ड हिज ऑप्शन. जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि वो कंपटीशन पे जाए, कि वो उस डूबते हुए बंदे को बचाए, उन्होंने तुरंत एक मोमेंट में क्या लेता है, अपने डिसीजन को बैलेंस करता है. ठीक है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द लॉरेंस. यू कैन सी फ्रॉम हियर. Yes. Okay. So read this line from this story and answer this question that follow. For a moment, Lawrence balanced his option. Your question is, where was Lawrence at this point in the story? इस समय वो कहाँ पर खड़ा है, कैसे अपने ऑप्शन को वो पॉइंट आउट करता है. सी में खड़ा है कि पूल में खड़ा है कि बीच में खड़ा है कि स्टेडियम में खड़ा है. किस चीज़ को पॉइंट किया गया कि उसको कहाँ पर पहुँचना है. उसको स्टेडियम में पहुँचना है. कहाँ पर पहुँचना है, स्टेडियम, एट द स्टेडियम. ठीक है. क्वेश्चन बी इज व्हाट वर द ऑप्शन दैट ही हैड. उसके पास क्या ऑप्शन था. व्हाट वर द ऑप्शन दैट ही हैड. क्या ऑप्शन था उसके पास. सो लॉरेंस ऑप्शंस वर टू आइदर हरी टू द स्टेडियम टू मेक इट इन टाइम फॉर द स्विमिंग कंपटीशन और टू स्टे एंड हेल्प द वुमेन हु वॉज क्राइंग बिकॉज हर सन वॉज लॉस्ट. तो यहाँ देखिए कि उसके पास क्या था ऑप्शन, कि या तो वो जल्दी से स्टेडियम चला जाए और अपना स्विमिंग कंपटीशन को फेस करे, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि वो वहीं रुके और उस वुमेन का डूबता हुआ बच्चा को बचाए. ठीक है. तो दिस इज योर आंसर, राइट. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एट द स्टेडियम नहीं होगा. इसका आंसर होगा एट द बीच. ठीक है. वो कहाँ पर है, एट द सी. ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, एट द बीच. इन द सी नहीं है, सी के अंदर नहीं है वो, इसलिए ये गलत है. और स्टेडियम पे भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है. आपका आंसर क्या हो जाएगा, एट द बीच.
नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड ही चूज टू डू एंड वाई। तो दो ऑप्शन थे, या तो वो स्टेडियम जाए या वो सी में जाए उस बच्चे को बचाने के लिए। तो उसने क्या चूज़ किया है, कौन सा ऑप्शन को उसने चूज़ किया है? सो योर आंसर इज व्हाट डिड ही चूज टू डू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन उसने चूज़ किया? ही चूज टू सेव द चिल्ड्रन। ओके, ही चूज टू सेव द चिल्ड्रन। बच्चे को बचाना उसने चूज़ किया बिकॉज ही थिंक दैट हिज स्किल इज़ प्रोबेबली नीड्स टू हेल्प समवन। कि मेरा ये जो स्किल है उसकी नीड क्या है, किसी को बचाना ही उनकी नीड है। मेरे इस स्किल का क्या वैल्यू है? अगर मुझे स्विमिंग आती है और कोई मेरे सामने डूब रहा है और मैं उसको बचा ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मेरी ये जो स्किल है, ये जो मेरा क्वालिटी है, ये मेरा टैलेंट है, ये तो वेस्ट है, मीनिंगलेस है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए उसने प्रीफर किया कि आई हैव टू सेव द किड और द चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, चूज द सेंटेंस इन विच बैलेंस हैज़ अ सिमिलर मीनिंग एज अबव। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि बैलेंस का सिमिलर मीनिंग कौन सा दे रहा है। सो हियर इज 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन। ही लॉस्ट हर वायलेंस एंड फेल, ही वेज टू टोमेटोज ऑन अ वायलेंस, द कंपनी सक्सेस टू रिफ्लेक्टेड इन इट्स हेल्दी बैंक बैलेंस, एंड आई स्ट्रगल टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली कमिटमेंट्स। ठीक है, सो योर आंसर विल बी शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल। वो वीमेन जिनका बच्चा डूब रहा था, उन्होंने अपना वायलेंस खो दिया था, अनवायलेंस हो गई थी वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2। आई अगेन हियर इज गिवन अ लाइन, यू हैव टू रीड केयरफुली एंड you have to reply the proper and correct answer for these 4 questions. So question 1 is A. Question A is, who was getting another chance? किसको अनदर चांस मिला जा रहा था, मतलब मिल रहा था, अनदर चांस किसको मिला है? Who was getting another chance? ठीक है, so your answer is Lawrence. Lawrence was getting another chance on the next day. A representative of the sports selection committee came to his home looking for him to give him another chance. दूसरे दिन क्या होता है कि कमेटी मेंबर का एक ऑफिसर आता है और इनको बोलता है कि भाई चलो और आप अपना स्विमिंग कंपटीशन पूरा कर लो, आई एम गिविंग यू अनदर चांस। ना क्वेश्चन नंबर बी इज वाई वॉज द पर्सन बीइंग गिवन अनदर चांस। उन लोगों ने इनको अनदर चांस क्यों दिया? इनके गुड डीड्स की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से दिया। सो योर आंसर इज लॉरेंस वॉज बीइंग गिवन अनदर चांस बिकॉज द वुमन हुज चाइल्ड लॉरेंस हैड सेव्ड, है ना, वो महिला जिसके बच्चे को लॉरेंस ने बचाया था फ्रॉम ड्रॉइंग, डूबने से, वेंट एंड टोल्ड द स्विमिंग ऑफिसर अबाउट लॉरेंस ब्रेवरी एंड द रीज़न फॉर हिज जिले फॉर स्विमिंग कंपटीशन। अच्छा, तो उस महिला ने जा करके स्विमिंग ऑफिसर को बताया था कि किस तरह से लॉरेंस ने, उस लड़के ने मेरे बच्चे की, डूबते हुए बच्चे की जान बचाई है और इसी वजह से वो कंपटीशन में लेट पहुंचा है। तो ये वो वजह थी कि उन लोगों ने उनके गुड डीड को देखते हुए कि विदाउट एनी सेल्फिशनेस उसने उस बच्चे को डूबने से बचाया, इस अच्छाई की वजह से उसको अनदर चांस दिया उन लोगों ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डू यू थिंक दैट वॉज राइट टू गिव द पर्सन अनदर चांस? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनको जो अनदर चांस मिला वो अच्छा था? रीज़न बताइए। सो योर आंसर इज, it was right to give the person another chance because everyone deserves an opportunity to improve and demonstrate their ability.
A single failure does not define someone's potential, and offering another chance can encourage and perseverance, boost confidence, and ultimately lead to success. Another chance किस लिए दिया गया, देना चाहिए कि कोई फेलियर आदमी वो नहीं डिफाइन कर सकता है दूसरे के पोटेंशियल को, और ऑफरिंग अनदर चांस, उनको दूसरा चांस मिला, उनको इनकरेज मिला, एंड परसेवरेंस मिला, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया गया, और अल्टीमेटली वो सक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किन्हीं को चांस देना अच्छी बात है, उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी एंड द लास्ट वन, इफ यू वर द पर्सन हु वॉज बीइंग गिवन अनदर चांस, हाउ वुड यू हैव फेल्ट, कि अगर आप वहाँ पर होते और इस तरह अनदर चांस मिलता तो आप कैसा फील करोगे, कैसा आपको महसूस होगा। सो योर आंसर इज, इफ़ आई वर द पर्सन बीइंग गिवन अनदर चांस, कि अगर मैं उस जगह पे होती और मुझे ऐसा मिलता, देन आई वुड फील ग्रेटफुल एंड मोटिवेटेड, कि भाई मैं तो उनको बड़ा आभार व्यक्त करती और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती। दिस अपॉर्चुनिटी वुड वैलिडेट माई एफर्ट्स एंड गिव मी renewed determination to perform my best and prove myself worthy of the district swimming team। तो क्या बोला जा रहा है, मैं वहाँ होती तो मैं क्या करता, मैं उनको आभार व्यक्त करता, उनसे मोटिवेट होता, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मेरे जो एफर्ट्स है उनको रिन्यू करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, और मुझे खुद को प्रूव करने के लिए, इन सब के लिए मैं उनको धन्यवाद देता। ठीक है, नाउ आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, सभी को समझ में आ रहा है। We have finished our all questions. Now, thank you so much for watching. Bye bye, take care.